नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग खुशी में ही हैं क्योंकि दीपावली आने वाले हैं ना। ठीक है, सबको मेरी इस दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली को आप लोग पूरी सावधानी के साथ मनाएं, ठीक है बच्चों। आज हमारे क्लास में पार्ट 9 सब्र का फल पाठ के बारे में देखेंगे। पार्ट 9 सब्र का फल, उसका मतलब पेशेंस। पेशेंस PATIENCE पेशेंस। पेशेंस का मतलब பொறுமை। इन तमिल हाउ कैन वी टेल பொறுமை। सब्र का फल पेशेंस। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। This is one of the moral story. शिक्षाप्रद कहानी, this is one of the moral story. सब्र का फल, उसका अर्थ क्या? पेशेंस। PATIENCE. What is patience? The capacity to accept or tolerate delay, trouble or suffering without getting angry or upset. What is patience? The capacity to accept or tolerate delay, trouble or suffering without getting angry or upset. It also means that I wait for things without complaining or trying to hurry them up. It also means that I wait for things without complaining or trying to hurry them up. Patience is an exercise in self-control. Patience is an exercise in self-control. ठीक है, सब्र का फल, उसका मतलब क्या? पेशेंस। उसका मतलब क्या? पेशेंस। PATIENCE பொறுமை। What is patience? The capacity to accept or tolerate delay, trouble or suffering without getting angry or upset. Okay? अब ये पाठ के बारे में देखेंगे। बच्चों, एक बार एक शहर में अकाल फट गया। एक बार एक शहर में अकाल फट गया। एक बार, once upon a time, शहर, शहर का मतलब सिटी। पेंसिल लेकर वो शब्द को अंडरलाइन कर कर उसका अर्थ लिखो, ठीक है। शहर, शहर का मतलब क्या? सिटी। अकाल, अकाल का मतलब फेमिन। अकाल का मतलब क्या? फेमिन। FAMINE। अकाल, अकाल का मतलब फेमिन। व्हाट इज फेमिन? A lack of food. Yeah, lack of food over a long period of time in a large area that can cause the death of many people. That means a lack of food. Famine means the people can't get enough food to eat. That is called famine. Famine means a lack of food over a long period of time in a large area that can cause the death of many people. ठीक है। Once upon a time there was a famine in a city. Once upon a time there was a famine. Famine means what? A lack of food. The people can't get enough food to eat. That is called famine. ठीक है। Once upon a time there was a famine in a city. लोगों ने भूखे मरने की नौबत आ गई। लोगों के भूखे, भूखा, भूखना, भूखना का मतलब क्या? हंग्री। भूखना का मतलब क्या? हंग्री। HUNGRY, हंग्री। मरने की नौबत आ गई। People were dying of starvation. People were dying of starvation. Starvation का मतलब suffering or death because there is not enough food. Starvation. Starvation का मतलब क्या? Suffering or death because there is not enough food.
So the people were dying of starvation. The people can't get enough food to eat. So the people were dying of starvation. तब शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की सोची. जब शहर के एक धनी का मतलब रिच, धनी का मतलब क्या, रिच. नेक दिल व्यापारी, गुड नेचर्ड. नेक दिल का मतलब हार्ट. गुड नेचर्ड वन रिच बिजनेसमैन. वन रिच बिजनेसमैन. नेक दिल का मतलब गुड नेचर्ड. ए रिच गुड नेचर्ड बिजनेसमैन wanted to help the people. The rich man thought that to help the people. ठीक है. शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद का मतलब हेल्प. मदद का मतलब हेल्प. लोग पीपल. ठीक है. मदद करने की सोची. ए रिच गुड नेचर्ड बिजनेसमैन फ्रॉम द सिटी प्लान्ड टू हेल्प द पीपल. The rich good natured businessman wanted to help the people. उसने घोषणा की कि वह शहर के बच्चों को अपने घर के आंगन में रोटियां बांटेगा. उसने घोषणा का मतलब अनाउंस्ड. घोषणा का मतलब क्या, अनाउंस्ड. ANNOUNCED. Announced. He announced that he would distribute the bread to the children of the city. He announced what he announced. What did he announce? He announced that he would distribute the bread to the children of the city in the courtyard of his house. उसने द व्यापारी ने घोषणा. द बिजनेसमैन अनाउंस्ड. व्हाट ही अनाउंस्ड मीन्स वह शहर के बच्चों को अपने घर के आंगन में रोटियां बांटेगा. रोटियां का मतलब ब्रेड. He announced that he would distribute the bread to the children of the city in the courtyard of his house. This like he announced. घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई. घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई. After the announcement, the next day there was a crowd. Bead का मतलब क्या, crowd. CROWD, crowd. After the announcement, the next day there was a crowd of children in front of the rich businessman's house. After the announcement, the next day there was a big crowd of children in front of the rich man's house. घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई. बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. बच्चों एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. In front of the rich man's house, in a big basket, so many bread kept in that basket. So the children were pushing each other. trying to reach the basket of
bread. The children were pushing each other, trying to reach the basket of bread. रोटियां छोटी बड़ी थी. रोटियां कैसी थी? छोटी रोटियां भी थी in the basket और बड़ी रोटियां भी थी. The breads were small and big in sizes. The small size of bread also there, the big size of breads also there. हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में तकामुकी कर रहा था. हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में. The child was frantic in the greed to carry big bread. Every child was frantic. Every child wanted to carry the big bread. So all the one pushing each other. All the children were pushing each other. बड़ी रोटी ले जाने के लालच में तकामुकी कर रहा था. इस तकामुकी से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी. All the children were pushing each other to take the big bread. At that time एक छोटी लड़की चुपचाप का मतलब साइलेंटली. चुपचाप का मतलब क्या? साइलेंटली. एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी. A little girl stood silently in the corner. The little girl stood silently in the corner away from this pushing. A little girl stood silently in the corner. कोने का मतलब in the corner away from this push. जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी. जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी. When all the children got the bread, she finally moved on. By then there was a little bread left in the basket. तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी. All the one took all the breads, the small bread and the big bread, all the one took all the breads. Only one small bread was there in the basket. That girl come and take that small bread. ठीक है? The little girl take that small bread. उस लड़की ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई. जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह छोटी लड़की अंत में आगे बढ़ी. तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी. उस लड़की ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई. When all the children got the bread, she finally moved on. By then there was a little bread left in the basket. The girl was happy and took the roti and returned her home. The girl was happy to got the small roti and took the roti and returned her home. अगले दिन फिर रोटियां बनने लगी. अगले दिन फिर रोटियां बनने लगी. The next day, अगले दिन का मतलब the next day also the bread started being distributed. बांटना का मतलब डिस्ट्रीब्यूट. बांटना का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट. DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट. अगले दिन the next day
the bread started being distributed again. आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी. आज भी पिछले दिन की तरह. Yesterday, how the children were pushing each other. This like today also. Today also, even today, as in the previous day, there was a push up. Even today. आज भी today also. वह लड़की एक कोने में खड़ी रही. That girl stood in a corner. Even today, that girl stood in a corner. उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली. Today also she got all the one took the children all the children took bread. Finally last अंत में सबसे छोटी रोटी मिली. Today also he finally got the little bread. अगले दिन फिर रोटियां मांगने लगी. आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी. आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही. उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली. लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई. लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई. The next day also the bread started being distributed. Even today, as in the previous day, there was a push up. Even today also that girl stood in a corner. She finally got the little bread and took that bread. The girl came home with that bread. घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला. वो छोटी लड़की एक कोने में खड़ी रही थी. सब बच्चे रोटी लेकर जाने के बाद वो अंत में सबसे छोटी रोटी लेकर घर आ गई ना. वो रोटी को घर आकर वो लड़की वो रोटी को तोड़ी तो उसमें से क्या रखा था. उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का. सोने का सिक्का का मतलब क्या? गोल्ड कॉइन. सोने का सिक्का का मतलब क्या? सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन. वो लड़की वो रोटी को तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला. She came home, then she broke that bread and a gold coin came out of it. A gold coin came out of the bread. लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का व्यापारी को लौटाने के लिए कहा. लड़की की माँ ने वो गोल्ड कॉइन को देखकर रोटी में से गिरे वो गोल्ड कॉइन को रोटी में से गिरा वो सोने का सिक्का को देखकर वो लड़की की माँ ने उससे यह सिक्का व्यापारी को लौटाने के लिए कहा. The girl's mother asked her to return the coin to the merchant. Which gold coin fell down from the bread to return the coin to the merchant. This like the girl's mother said to the girl, you go and return the gold coin to the merchant. The girl लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो व्यापारी बोला, बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था. बेटी
मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। वो व्यापारी ने लड़की से क्या कहा? लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो व्यापारी बोला, बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। When the girl arrived to fetch the gold coin, लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने का मतलब टू रिटर्न द कॉइन, सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो to fetch the coin to the businessman. The businessman said, daughter, I had deliberately put the coin in the smallest bread. जानबूझकर का मतलब I know, I only put the coin in the bread. I wanted to reward the most patient child. So I kept the coin in the small bread. The businessman said, daughter, I know I had deliberately put the coin in the smallest bread. I know I only put the coin in the smallest bread because I wanted to reward the most patient child. The children are pushing each other. At that time, you only silently stood in the corner. So I wanted to reward to you. So I kept the coin in the smallest bread. व्यापारी की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। व्यापारी की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही इनाम बहुत है, मेरे लिए यही इनाम बहुत है, वैसा बोला। Listening to the businessman, the girl said, Seji, the reward of my patience was that I didn't have to get things like others. This reward is enough for me. The girl, listening the businessman, the girl said, Seji, the reward of my patience was that I didn't have to get things like others. This reward is enough for me. I don't want the gold coin. If I get the gold coin means I can be greedy with a coin and I can also come on a push to get small bread because the small bread only having the gold coin. So keep this coin to yourself. The girl said to the businessman, Seji, the reward of my patience was that I didn't have to get things like others. This reward is enough for me. This reward is enough for me. मेरे लिए यही इनाम बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ। If I take the gold coin means I can be greedy. सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ. So I also want to get the gold coin
I can be greedy with the coin and I can also come on a push to get the gold coin, to get small bread. इसलिए यह सिक्का आप ही रखें, इसलिए यह सिक्का आप ही रखें. So keep this coin to yourself. So keep this coin to yourself. This like the little girl said to the businessman. लड़की की बातें से व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया. लड़की की बातों से व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री बना लिया. The businessman was so impressed. प्रभावित, प्रभावित का मतलब क्या? Impressed. IMPRESSED, impressed. The businessman was so impressed by the girl's words that he made her his daughter. धर्मपुत्री उसका मतलब क्या? Daughter. The businessman was so impressed by the girl's words that he made her his daughter. ठीक है, ये पाठ का सीख क्या? सब्र का फल मीठा होता है. सब्र का फल मीठा होता है. Patience always pays. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Patience is bitter, but its fruit is sweet. This is the moral of the story. सब्र का फल मीठा होता है. ठीक है, पहले ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे. पहला सब्र. सब्र का मतलब पेशेंस, संतोष. सा इन तो इस संतोष. सब्र संतोष. मदद. मदद का मतलब हेल्प, सहायता. मदद. मदद का मतलब सहायता. सहायता, सहायता, हेल्प. लालची, ग्रीडी, लोभी. लालची का मतलब ग्रीडी, लोभी. प्रसन्न. प्रसन्न हैप्पी, खुश. खु इस खुश. प्रसन्न खुश. इनाम. इनाम का मतलब रिवार्ड. इनाम का मतलब रिवार्ड. पुरस्कार. पुरस्कार, पुरस्कार. ठीक है, और भी एक बार पढ़िए. शब्दार्थ. सब्र. सब्र संतोष. सा इन तो इस संतोष. मदद सहायता. सहायता, सहायता. लालची, लोभी, लोभी, लोभी. प्रसन्न खुश. प्रसन्न खुश. इनाम पुरस्कार. इनाम पुरस्कार. पुरस्कार, पुरस्कार. नेक्स्ट रोमन. क्रिया शब्दों में टिक निशान लगाइए. टिक द वर्ड्स दैट आर वर्ब्स. क्रिया. क्रिया का मतलब वर्ब. क्रिया. क्रिया का मतलब क्या? वर्ब. ग्रामर में आप संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, आप क्या पढ़ते हैं? क्रिया. क्रिया का मतलब क्या? वर्ब, द एक्शन वर्ड्स. क्रिया. क्रिया का मतलब क्या? वर्ब. वो नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्दों को टिक कीजिए. ठीक है, क्रिया का मतलब क्या? वर्ब. जो शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं. एक्शन वर्ड्स प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग,
writing. The same in हिंदी also. जो शब्द से किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना. देखना, देखना का मतलब to see. लिखना, लिखना का मतलब to write. पढ़ना, पढ़ना का मतलब to read. कूदना, कूदना का मतलब to jump. This like जो शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं. ठीक है, अब देखिए पहला क्या दिए है ना, रोटी. रोटी, रोटी, रोटी का मतलब ब्रेड. यह क्या है? करेक्ट, ये संज्ञा है. रोटी, रोटी नेम ऑफ अ थिंग्स. सो ये वर्ड, ये शब्द संज्ञा है, इसलिए ये क्रिया नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट सोचना. सोचना, सोचना का मतलब टू थिंक. सोचना का मतलब टू थिंक. अब ये क्या? ये शब्द क्रिया है. वेरी गुड, ये शब्द क्या है? क्रिया. सोचना, सोचना का मतलब टू थिंक, इसलिए ये शब्द क्रिया है. ठीक है, नेक्स्ट वन मिलना. मिलना, मिलना का मतलब टू गेट. मिलना का मतलब टू गेट और मीट. ये शब्द क्या? ये शब्द क्रिया है. नेक्स्ट देखना. देखना का मतलब टू सी. ये शब्द क्या है? करेक्ट, ये शब्द भी क्रिया है. देखना शब्द क्रिया है. ठीक है, सिक्का. सिक्का का मतलब गोल्ड कॉइन. ये क्या है? करेक्ट, ये संज्ञा है, नेम ऑफ अ थिंग्स. सो ये शब्द संज्ञा है. ठीक है, नेक्स्ट पूछना. पूछना का मतलब टू आस्क. पूछना का मतलब टू आस्क. ये शब्द क्या शब्द है? करेक्ट, क्रिया शब्द ही है. ठीक है, नेक्स्ट मई. ये शब्द क्या है? क्रिया या संज्ञा या सर्वनाम. ये तीनों में मई, मई शब्द क्या है? आप बोलिए. करेक्ट, मई सर्वनाम है. मई, मई ये शब्द सर्वनाम है. ठीक है, बांटना. बांटना का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट. बांटना का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए ये शब्द करेक्ट क्रिया ही है. नेक्स्ट मिटाना. मिटाना का मतलब टू एरेज. मिटाना का मतलब क्या? टू एरेज. ये शब्द क्या है? ये शब्द भी क्रिया ही है. ठीक है, रखना. रखना का मतलब टू कीप. रखना का मतलब टू कीप. ये शब्द क्या है? करेक्ट, ये शब्द भी, रखना भी क्रिया है. नेक्स्ट लड़की. लड़की ये शब्द क्या है? ये संज्ञा है. वेरी गुड, ये शब्द संज्ञा है. ठीक है, चलना. ये शब्द क्या है? आप बोलिए. चलना का मतलब टू वॉक, इसलिए ये शब्द क्रिया है. क्रिया का मतलब क्या? वर्ब. क्रिया का मतलब क्या? वर्ब. बच्चों आप क्रिया शब्दों को टिक कीजिए. सोचना ये क्रिया शब्द है. सोचना का मतलब थिंक. मिलना ये क्रिया शब्द है. मिलना का मतलब टू गेट. देखना ये क्रिया शब्द है. देखना का मतलब टू सी. पूछना ये क्रिया शब्द है. पूछना का मतलब टू आस्क. बांटना ये क्रिया शब्द है. बांटना का मतलब डिस्ट्रीब्यूट. मिटाना ये क्रिया शब्द है. मिटाने का मतलब ये क्रिया शब्द है. रखना का मतलब टू कीप. चलना टू वॉक ये भी क्रिया शब्द है. नेक्स्ट रोमन. व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले आपको मालूम है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं.
आप जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में पहले ही अच्छी तरह आपने पढ़ा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में ही आप पढ़ते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। Words that are the names of a particular person, place or thing are called proper noun, ठीक है। We went to city, that means city is a संज्ञा, city is a noun. We went to Agra, we mentioned the city means Agra, that is proper noun, ठीक है। समझ में आया ना? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप उदाहरणों को देखेंगे। लीला 7 साल की लड़की है। लीला 7 साल की लड़की है। पहला, लीला 7 साल की लड़की है। लीला 7 साल की लड़की है। लीला इज ए 7-year-old गर्ल। ये वाक्य में लीला विशेष व्यक्ति, इसलिए ये वाक्य में लीला ही भाववाचक संज्ञा है। लीला 7 साल की लड़की है। लीला इज ए 7-year-old गर्ल। इन दिस सेंटेंस लीला इज अ पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए लीला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए लीला को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द वर्ड लीला। नेक्स्ट, मेरे फूल का रंग पीला है। माई फ्लावर इज येलो इन कलर। मेरे फूल का रंग पीला है। My flower is yellow in color. Yellow, particular name of a color. इसलिए yellow is a व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें पीला को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, मेरा शेरू मेरे साथ रोज खेलता है। My शेरू प्लेस विथ मी एवरी डे। मेरा शेरू मेरे साथ रोज खेलता है। माई शेरू प्लेस विथ मी एवरी डे। मैं शेरू नेम ऑफ अ पर्सन शेरू, इसलिए शेरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ। मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ। आई लिव इन द सिटी ऑफ दिल्ली। Delhi is a name of a particular name of a place. So Delhi भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, मेरी मम्मी का नाम रमा है। My mother's name is रमा। रमा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। एक बार बोलिए, लीला 7 साल की लड़की है। इसमें लीला पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए लीला इज अ प्रॉपर नाउन। मेरे फूल का रंग पीला है। माई फ्लावर इज येलो इन कलर। पीला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेरा शेरू मेरे साथ खेलता है। शेरू पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन।
शेरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ। आई लिव इन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस। मेरी मम्मी का नाम रमा है। माई मदर्स नेम इज रमा पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट रोमन, कोष्टक में से सही सर्वनाम शब्द जानकर खाली जगह भरिए। Fill in the blanks by picking appropriate pronouns from the bracket. First one, घर लौटते समय डैश सोचने लगी। घर लौटते समय डैश सोचने लगी। वह सोचने लगी या उस सोचने लगी। ये दोनों सर्वनाम में क्या आएगा? वह आएगा या उस आएगा? हाँ करेक्ट, वह ही आएगा। घर लौटते समय वह सोचने लगी। नेक्स्ट, डैश मुस्कुराते हुए कहा। डैश मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें या उसने। उन्हें या उसने। उसने करेक्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ही सेड स्माइलिंग। उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेक्स्ट, डैश लालच नहीं करना चाहिए। हम आएगा या हमें? आप बोलिए। करेक्ट, हमें। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम लालच नहीं करना चाहिए नहीं आएगा, हमें ही करेक्ट है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, खास डैश भी उसके जैसी दिखती। खास डैश भी उसके जैसी दिखती। हम मैं आएगा या हम? हाँ आप बोलिए। करेक्ट, मैं। खास मैं भी उसके जैसी दिखती। खास मैं भी उसके जैसी दिखती। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, बच्चे धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? बच्चे धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? Why were the children pushing? Why were the children pushing? Why the children were pushing? बड़ी रोटी लेने के लिए। The children were pushing to get big bread. बच्चे धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? Why were the children pushing? बड़ी रोटी लेने के लिए बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। चिल्ड्रन वर पुशिंग टू गेट बिग ब्रेड। बड़ी रोटी लेने के लिए। बड़ी बड़ी रोटी रोटी लेने के लिए। नेक्स्ट वन, लड़की को रोटी में क्या मिला? लड़की को रोटी में क्या मिला? What did the girl get in the bread? What did the girl get in the bread? लड़की को रोटी में सोने का सिक्का मिला। लड़की को रोटी में सोने का सिक्का मिला। The girl found a gold coin in the bread. लड़की को रोटी में क्या मिला? लड़की को रोटी में सोने का सिक्का मिला। सोने सोने का सिक्का, सिक्का गोल्ड कॉइन मिला।